Good morning to you all. Very good morning. Yes, Amanraj. Very good morning. Very good morning to all of you. Am I audible to everyone? Am I visible to everyone? Thank you. Thank you very much. Everybody can hear me? Everyone? Everyone, just raise your hand. Everyone? Everyone? Yes. Thank you. Thank you. Okay. Should we start? Okay. So, in the last class, day before yesterday, we have discussed about modulus function. Isn't it? So let's recap what is modulus function. Okay. So we'll just go through the quick revision of the modulus function. Okay. So what I have told you about modulus function, just a quick revision, that the modulus of any number is always positive, isn't it? Modulus of any number is always positive. It means what? If any positive number is there, so modulus of that number will be number itself. And if a negative number is there, then the modulus of that number will be again positive, isn't it? We have taken example. So what example we have taken? Let's suppose we have taken example 3. Okay, we have taken example 3. So let's suppose just see, we have seen modulus of 3 is equals to 3. Okay. Now again, if you take the modulus of -3, it is again 3. Okay. So what we observe from here, that modulus of any number is always positive, isn't it? Modulus of any number is always positive. It will always give the positive value, isn't it? Then after that, we have also seen the definition of the modulus function. What is the definition of the modulus function? Function definition we have seen like this. Okay, this is very important actually. So we have seen the fx equal to, we have written as mod of x. Now further it has been written, okay, like this. This is x. When it will be x, when it will be x, when x is a positive number, isn't it? X is greater than or equal to 0. And when x is negative number, we have seen this is minus x, isn't it? So what is the need of this definition? The need of this definition is, if a layman is there, okay, if a layman is there, he will not understand about this modulus function. So what he will do? So he will just see what is the value of x. Let's suppose if I am putting x equal to 3, okay. So if x equal to 3, for x equal to greater than or equal to 0, the modulus of x will be x. So we have seen that this is x equal to 3, means x equal to 3 means this is a positive number. Okay, this is a positive number. X for x greater than 0, because 3 is greater than or equal to 0. If you are putting this, the 3 is greater than 0. So which definition will follow this? So this will be simply mod of x will be simply 3. Okay. If you take a negative number, let's suppose if you are taking -3. So -3 is less than 0. Here you see -3 is less than 0. So what we'll do? We will use this definition. So what will be this definition? -x. So this will minus of -3. So this will be 3 again. So you have to understand this definition also, isn't it? This definition is very important. That for x greater than or equal to 0, modulus of x equal to x, and for x less than 0, it will be equal to -x, isn't it? We have discussed about this. Now, next thing, I have also explained you modulus function geometrically. What is the meaning of mod x? Okay, I have also explained you geometrically the meaning of mod x. So what was the geometrical meaning of mod x? The geometrical meaning of mod x is the distance of, we have written distance of the point from origin. This definition we have also discussed in the last class, from origin. In number line, in the number line, okay.
So what does it mean? If we take mod of, let's suppose 2, what does it mean? So this is the distance of the point from origin. Okay. So what is the point here? 2. Okay. If you take a number line, so this is the origin. So you have to measure all the distances from origin, isn't it? You have to measure all the distances from origin. Okay. Let's suppose this is 2. So what is the distance of 2? Means you have to see its distance. So what is the distance of 2 from origin? So it will be simply 2 only. So we will write this 2. So since we have used the term distance, so it is always positive. So we have also observed that the modulus of any number is always positive because the distance is involved. Okay. If you are making minus mod 2, okay, mod of minus 2, then again if we will take a point here, so what will be distance? So distance is again 2. Okay, so again it is. So we have seen the modulus function as ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव नंबर का भी मॉड पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर का भी मॉड पॉजिटिव. और मैंने दूसरा डेफिनेशन ये भी बताया था आपको कि मॉडुलस ऑफ द फंक्शन इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, है ना, फ्रॉम द ऑरिजिन. मींस यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, isn't it? So this much we are clear about. Okay. Okay. Now next thing. So how many of you understood till here? How many of you understood till here? Let me see. We have already discussed. Okay. Just a quick recap. How many of you understood till here? Let me see. Okay. Very good. Excellent. Excellent. Okay. Now after that, if any doubt is there till here, any doubt, you can raise your doubt. Okay. No issues. Okay. Now after this, we have also understood about the properties. Okay. We have seen some of the properties. So let's see the properties once again, isn't it? So these properties of modulus function you have to remember, isn't it? You have to use directly. Okay. Modulus function. Isn't it? So I will make you write all the properties of the modulus function. Okay. By giving examples, isn't it? So what we'll do, we will write the properties here and we will do the rough work here, isn't it? We will do the rough work here. Okay. So this is very important actually. So yesterday we have seen like this. Day before yesterday we have seen that mod of x equal to 3. Okay, mod of x equal to 3. What does it mean? So if I ask you solve, what does it mean? Solve for x means whenever this kind of equation is given, you have to solve for x only. You have to solve for the variable. Means what does it mean? What this question means? That if the mod of x equal to 3, then what is the possible values of x? What is the possible values of x? So what is the possible value of x? Okay. So you have to directly say x equal to plus minus 3. So how it will come logically? You can interpret logically. Okay. So this is basically a distance. So what will the possible position of x? So that mod of x equal to 3. So that distance will be 3. So the only two possible position is there like this, and this is 3 and this is minus 3. So for these two positions of the particle, the mod of x distance will be 3. So what will be the value of x? What is the possible position? The position will be 1 is 3 and 1 is minus 3. So it can also be written as plus minus 3. So if it is positive, mark it. This is positive, isn't it? So we have written one property that mod of x equal to a. Okay, when a is positive, isn't it? A is greater than equal to 0, then it can be written as x equal to plus minus 3. You have to remember it. You have to remember, very, very important. Logically, you have to understand and then you have to remember this formula. So whenever this kind of expression comes, you will directly apply x equal to plus minus a. Understand this a must be positive. Why I'm saying a is positive? Let's take an example, isn't it? Let's take an example. If I say mod of x equal to minus 3. So by understand, since you have understood it geometrically also, so mod of x equal to minus 3. Can it happen? Mod of x can be for a negative. Just tell me everyone, mod of x negative कभी हो सकता है? No. Mod of x कभी negative हो सकता है? It's positive, including 0. I'm saying including 0. Okay. Mod of x is always positive, including 0. 0 भी हो सकता है ना? Okay. How many of you understood? Never. Okay. Very good. Excellent. No solution. Yes.
So you have to understand, okay? तो आप डायरेक्टली देखो विदाउट एनी कैलकुलेशन. अब बच्चे क्या करेंगे ना, इसमें भी कैलकुलेशन करने लगेंगे. सर मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू -3, देन सर you have to think logically, okay? You have to think logically. Mod of x -3, okay, कभी हो ही नहीं सकता because mod of x is distance. तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, जीरो होगा. जीरो कब होगा, जैसे आप जिस पोजीशन में हो उसी पोजीशन में रहे तो जीरो है ना. और अगर आप कुछ ट्रैवल कर रहे हो है ना, तब आपका एक डिस्टेंस निकल के आएगा. तो इस केस में तो पॉसिबल ही नहीं है. तो इसको हम लोग क्या कैसे लिखते हैं, मैथ्स में कैसे सोल्यूशन लिखते हैं, 5 ऐसे लिखते हैं है ना, ऐसे लिखते हो. तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोल दूं मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू minus a, you have to understand, okay? Then if a is positive, if it is written a is positive, what is the value of x here? X equal to 5. Very good. Everybody understood right now. So if it's also called no solution, isn't it? It's called no solution. No solution. Okay? So you write this. Understood? Okay. Now let's take third one. So if I tell you like mod of x equal to 0, तो हाँ mod of x 0 हो सकता है. तो इसके लिए क्या वैल्यू होगी, x equal to 0. You can use the same definition, isn't it? So this much you are very much clear about. Okay. Hope everyone is clear. Everyone, raise your hand. Everyone. Any doubt is there till here? Now I will go to what is the possible values of x? So x will be 0 only. So mod of x equal. What is the possible position? Just see. I explained you now. Just see. This is a number line. So this is 0. So mod of x is distance, okay? So mod of x equal to 0 means what? The position is here only. Means the point is here only. So what is the possible position? Make it the distance 0. So this will be the position. Okay, this is the position. Okay. So this x will be 0 only, isn't it? Understood, Kavya? Okay. Everyone, any doubt is there? Any doubt? Till here, any doubt is there? Is 0? No. जीरो को अब आप लोग एक चीज पूछ रहे हो. चलो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अगर आप डिटेल में पूछते तो मैं बता देता हूँ. बहुत सारे बच्चे पूछ रहे, आधे पूछ रहे सर जीरो को पॉजिटिव बोलते हैं. नहीं, जीरो को पॉजिटिव नहीं बोलते हैं. मैं बता रहा हूँ क्या बोलते हैं. मैथमेटिकल इसका करेक्ट वर्ड क्या है, आई एम टेलिंग यू, जस्ट नोट इट, है ना. यहाँ तक आप लिखो पहले, जस्ट राइट इट. यहाँ तक आप लोग लिख लिए थे, जिनका नहीं लिखा है यू कैन राइट इट, है ना. चलो रब इट. ओके, गॉट एवरीवन? नो इश्यूज टिल हियर? नो डाउट इज देयर? नो डाउट? एनीवन? नो डाउट? Isn't it? Everybody understood? Just raise your hand. Everybody understood till here? All the concepts, very important, very important. I'm telling you, each and everything what I'm telling about mod is very important. Okay, all will be used. I'm telling you, all will be used. कब use होगा? Okay, कभी भी use हो सकता है, ठीक है? आपको ये कॉन्सेप्ट एज ए टूल याद रखना है. You have to understand these are tools, है ना. टूल्स है ये सब मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. दीज आर द टूल्स, इजंट इट? ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जेई में कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 3, तो बताओ एक्स की वैल्यू बताओ. ये नहीं आएगा. ये ऐसा होगा, ये एक स्टेप होगा आपका. जैसे एक क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो दिस विल बी वन ऑफ द स्टेप्स. दिस कैन बी द लास्ट स्टेप जिसमें आपको जानना पड़ेगा. सो दीज आर द मीन्स इफ यू आर हैविंग डिफरेंट स्टेप्स, देन अ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टेप्स. तो जब स्टेप्स आप करते हो तो फिर आपको एक सोल्यूशन मिलता है. तो दिस विल बी एक्टिंग एज अ टूल. ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर इट, इजंट इट? तो डायरेक्टली अगर आपको बोला जाए मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए और ए इज पॉजिटिव, तो आपको याद रखना है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस. यू हैव टू टेल योरसेल्फ 5 times, isn't it? Mod of x equal to a. Just tell yourself 5 times mod of x equal to a. Then x equal to plus minus a. Just tell yourself 5 times. Because after 1 month now, you start forgetting all this. Okay? So you have to keep this in your mind, isn't it? 2 years you have to keep this in your mind, isn't it? So mod of x equal to a, then x equal to plus 1. Or you can also remember like the mod of x equal to 3, then x equal to plus minus 3. 2 values, isn't it? 2 values. Okay? Okay. Now see. Okay, now somebody asked me, Adya has asked me, sir, what is zero? So हम लोग ना मैथमेटिक्स में 2 तरह का टर्म यूज करते हैं, ठीक है? ये जरूरी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. एक यूज करते हैं पॉजिटिव,
है ना, एक यूज करते हैं, वी यूज वन टर्म पॉजिटिव एंड वन टर्म वी यूज नॉन नेगेटिव। जैसे आप जानते हो ना, जैसे आप जानते हो होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, तो आप ऐसे सोचो, पॉजिटिव का मतलब होता है नेचुरल नंबर एंड नॉन नेगेटिव का मतलब होता है होल नंबर। एज सिंपल लगता है, मतलब पॉजिटिव कैन आल्सो बी इज इक्वल टू, पॉजिटिव इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर, isn't it? And non-negative is equivalent to whole number. अब आपको तो पता है कि पॉजिटिव में क्या क्या आता है, पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 इट विल गो ऑन लाइक दैट। और नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नॉन नेगेटिव यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन नेगेटिव, इट विल इंक्लूड जीरो आल्सो, तो 0 1, ओके। तो याद रखना, कभी भी अगर नॉन नेगेटिव है तो ऐसे आप, अच्छा सॉरी, वन मोर थिंग, अच्छा आप इसको केवल नेचुरल नहीं बोल सकते हो, नेचुरल नहीं बोल सकते, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। पॉजिटिव में देखो, पॉजिटिव थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ, इसमें पॉजिटिव अगर मैं इंटीजर बोला है ना, पॉजिटिव अगर मैं यहाँ पर यूज किया पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर, थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ, तब इसको नेचुरल नंबर बोलेंगे, है ना, समझे बात। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोला ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, देन इसको हम लोग होल नंबर बोलेंगे, ठीक है, अच्छा ठीक है। और मैं अगर केवल ये बोला पॉजिटिव नंबर, है ना, पॉजिटिव नंबर, है ना, पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर्स का मतलब क्या हो गया पता है आपको, ये हो गया आपका ये वाला बैग, मतलब पॉजिटिव नंबर कैसे, अगर नंबर लाइन ये दिए ना, तो दिस इज 0 से बड़ा, है ना, 0 से बड़ा, और यहाँ क्या आ जाएगा हॉलो, तो मतलब ये हो गया 0 से पॉजिटिव नंबर को मैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें पॉजिटिव नंबर। अगर नॉन नेगेटिव नंबर आप बात करो, नॉन नेगेटिव नंबर, तब आप क्या बात करोगे, यहाँ से नॉन नेगेटिव नंबर कैसे बात करोगे, फिर आपका क्या होगा, 0 भी इंक्लूड होगा, है ना, 0 भी इंक्लूड, ठीक है, तो दिस विल बी लाइक 0 से इंफिनिटी। तो डिफरेंस एक ही है कि अगर पॉजिटिव नंबर बोलते हो तो 0 विल नॉट बी इंक्लूडेड, एंड नॉन नेगेटिव नंबर बोलते हो तो 0 विल बी इंक्लूडेड। होप आई एम क्लियर टू यू, ठीक है। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव छोड़ के सब कुछ हो सकता है, तो नेगेटिव छोड़ के अगर नंबर लाइन में आप बात करो तो यहाँ से जितने नंबर्स हो सकते हैं सबको हम लोग नॉन नेगेटिव बोलते हैं। तो बेसिकली वी यूज टू टर्म्स, पॉजिटिव नंबर एंड नॉन नेगेटिव नंबर। So positive number means 0 will be open, 0 will not include as positive, है ना, so this is 0 to infinity, and non-negative numbers means 0 will be included, and if you're talking about positive integers, so this will be natural number, and if you're talking non-negative integers means whole number, means 0 1 2 3 like that. Hope I am clear to you, everyone. Hope I am clear to you. Are I clear to you? अंडरस्टैंड, पॉजिटिव का मतलब हो गया केवल 0 को छोड़ के, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव मतलब, ओके सर, सो 0 इज नाइदर, या 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ठीक है। एक टर्म है, आप लोग याद रख लो इसको, पॉजिटिव नंबर मतलब हो गया 0 से स्टार्ट होता है, और नॉन नेगेटिव नंबर मतलब 0 से, है ना, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव को छोड़ के, मतलब इधर आ जाओगे तो नेगेटिव, 0 से, ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। कभी भी नॉन नेगेटिव का बात हो गया तो हमेशा हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, है ना, नॉन नेगेटिव मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और पॉजिटिव मतलब 0 नहीं रहेगा, 0 को छोड़ के, तो दिस विल बी द इंटरवल, है ना, और यहाँ पर इंटरवल क्या आएगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ठीक है, एम आई क्लियर एवरीवन, ओके चलो। नाउ वी विल टॉक अबाउट मॉडुलस इनइक्वालिटी, है ना, मॉडुलस का इनइक्वालिटी हम लोग देखेंगे यहाँ पर, मॉडुलस का इनइक्वालिटी, व्हाट इज मॉडुलस इनइक्वालिटी, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बोला ऐसे मैं अगर बोल दिया, ठीक है, अगर मैंने बोल दिया मॉड ऑफ एक्स, अभी पहले एग्जांपल में हम लोग लेते हैं यहाँ पर, एक एग्जांपल लाइक दिस, मॉड ऑफ एक्स, लेट्स सपोज वी आर मेकिंग लेस देन, लेट्स सपोज 2, व्हाट डज इट मीन, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है,
इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोल दिया सॉल्व फॉर एक्स, आप पहले समझो इस चीज को, सॉल्व फॉर एक्स है ना, सॉल्व फॉर एक्स। अगर मैंने बोला, आप पहले सोचो, आप जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट डज इट मीन। अभी मैंने आपको कुछ क्लास पहले वेदी कर्व समझाया था। वेदी कर्व किसके लिए हम लोग यूज करते थे? बेसिकली अलजेब्रिक इनइक्वालिटी के लिए, है ना। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, एक वेदी कर्व होता था और एक सिंपल एक इक्वेशन होता था। जब मैं कोई इक्वेशन की बात करता था, लेट सपोज मैं अगर इस इक्वेशन की बात किया, x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसे में जब बात किया तो इसके जो सॉल्यूशंस आते थे x इक्वल टू 1 आते थे और x इक्वल टू 2 आता था, मतलब लिमिटेड सॉल्यूशन होता, फाइनाइट सॉल्यूशन होता था। बट मैं अगर इसी इक्वेशन को ऐसे लिख देता था, आप समझो चीज को, ऐसे लिख देता था, तो कितने सॉल्यूशन होते थे इसमें? मैंने एग्जांपल दिया था, कितने सॉल्यूशन होते थे इसमें? बहुत सारे सॉल्यूशन होते थे। आप लिखते भी थे इसको, आप क्लोज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, यू रिप्रेजेंट दिस एज क्लोज, है ना, क्लोज ब्रैकेट से बहुत सारे सॉल्यूशन होते थे। क्या क्या सॉल्यूशन होते थे? मैं इसको वेवी कर्व खींचता था, इसका वी ड्रॉ द वेवी कर्व, है ना। तो सॉल्यूशन क्या होता था, यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन हो जाता था, ऐसे होता था। तो देखो कितने सॉल्यूशन होते थे, इसके सॉल्यूशन क्या क्या होते थे? 3 हो सकते थे। We can take this solution as 4 also, 5 also, 6 also, 7 also. Lots of solution is there. Here also we can take it as, यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते थे। मैं 0 भी ले सकता था सॉल्यूशन, नेगेटिव में भी ले सकता था, -5 भी ले सकता था सॉल्यूशन, है ना। तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते थे। तो एक चीज आप समझो, when we are dealing with inequality, like there are chances that it can have infinite number of solutions, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। If I ask you what is the solution of this equation, can you tell me like 2 solution of this equation? Can you tell me the 2 solution? Yes. Can you tell me the 2 solution? Abhi forget about all this -2 and 2. Just I'm asking, try to observe the situation. Can you tell me the only 2 solution of this equation? Everyone? आप लोग क्या ऐसा 2 solution मुझे बता सकते हैं? ज्यादा नहीं, 2 solution बता सकते हैं। Everybody just try to tell me 1 solution of this equation. 1 solution of this inequation. एक solution आप बताओ। अभी forget about inequality and all. आप, हम लोग पहले समझेंगे चीज को, हो क्या रहा है। चलो, हाँ, जैसे इसका मुझे 2 सॉल्यूशन बताओ आप, जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लोग क्या करोगे? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर, कोई बोला 0। हाँ, अगर मान लो मैं लेता हूँ, ठीक है, जो आप सोल्यूशन बोल रहे हो ना, मैं लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं लिख दिया, जैसे बोले बच्चे 0 है, तो मैं पुट करूंगा 0, तो मॉड ऑफ 0, तो मॉड ऑफ 0 इज बेसिकली 0, तो 0 इज लेस देन 2, मतलब ये 2 बड़ा है 0, ये सही है, तो 0 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? और बच्चे बताओ, और बताओ। हाँ, 1.2 पुट कर लिए, 1.2 का मॉड कैलकुलेट कर लिया, दिस इज 1.2। नाउ 1.2 इज लेस देन 2, सही है, 2 हमेशा बड़ा है 1। तो हम x की ऐसी सी वैल्यू ले सकते हैं जिससे कि 2 इससे बड़ा हो जाए। तो मुझे यही क्वेश्चन है, अंडरस्टूड? एवरीवन अंडरस्टूड द क्वेश्चन? कि मैं अगर x की ऐसी वैल्यू से पुट करूं जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा, इजंट इट? सो हियर आप देख रहे हो, so we will have to take real numbers, right? All the real numbers, yeah, real numbers लेना, imaginary नहीं लेना है। मैंने बोला ना कि imaginary numbers हम लोग एक ही जगह पढ़ेंगे, कहाँ पर? कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर है मैथ्स में, वहां पर इमेजिनरी नंबर डील करेंगे। अदर देन दैट यू डोंट हैव टू आस्क ऑल्सो, या इट्स अ डाउट तो यू कैन आस्क, बट यू डोंट हैव टू आस्क योरसेल्फ, सर इमेजिनरी ले सकते हैं क्या? नो, वी विल नॉट कंसिडर द इमेजिनरी नंबर, वी विल ओनली डील विथ रियल नंबर्स हियर, इजंट इट? कैन वी टेक सर, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कैन वी, देखो अभी मैं समझ रहा हूँ चीज को क्या है, सोल्यूशन तो हम बाद में निकालेंगे, पहले तो समझे तो सही कि हो क्या रहा है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर। बच्चे क्वेश्चन दिया, बच्चे इसका सोल्यूशन फाइंड करने लगे, मतलब दे आर बिजी इन फाइंडिंग द सोल्यूशन, बट दे डोंट अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। मैं क्यों इस प्रोसेस पे जा रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, why this step is important, why this process is important, you have to understand this, okay? Solutions तो निकाल ही लेंगे हम 2 साल यही करने वाले हैं, but sit back and try to analyze the question, what is the question है। यहाँ क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चे ने बोला सर, सिया ने बोला सर -1 ले सकते हैं क्या? पुट योरसेल्फ, है ना, नंबर्स है ना, तो x -1 ले लेते हैं, ठीक है। -1 अगर लेते हैं तो -1 का मॉड, तो -1 का मॉड इज बेसिकली 1, दिस इज 1। अब मैंने देखा कि 2 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, ये भी सही है। और बताओ और क्या ले सकते हैं? 1-2 नंबर करते हैं, फिर हम लोग एनालाइज करेंगे। और बताओ, जैसे आपने बोला, और बोलो किया, everyone has to interact, isn't it? Everyone has to interact, isn't it? Then you will understand, don't hesitate for anything, है ना।
-1 0, very good, which is it is less than or equal to, okay okay, I'll come back to this, है ना, -1000, बहुत सारे बच्चे सर माइनस कितना है 3 4 -10 लाख बच्चे बोले, सही है, -10 लाख पुट कर दिए, देखो -10 लाख है, -10 लाख, ठीक है, ऐसे इसका मॉड ले लीजिए। अब ये सोल्यूशन हो सकता है क्या बोलो, अब इसका मॉड ले लिए तो ये हो सकता है, -10 लाख हो सकता है क्या बोलो आप, नहीं हो सकता है ना, हो सकता है, देखो अब ये बड़ा होगा क्या, बड़ा होगा इससे, -10 लाख का सोल्यूशन नहीं होगा, गलत हो गया ना। अब -5, अगर -5 आप पुट किए, देखो -5 मॉड ऑफ -5 इक्वल टू 5, अब ये सही हो सकता है कि गलत हो गया यहाँ पर, तो 2 5 से बड़ा नहीं है, तो -5 और -10 लाख इसका सोल्यूशन नहीं होगा, isn't it? तो अब आप देख रहे हो कि इसका सोल्यूशन तो बहुत आ रहा है। अब अगर ऑब्जेक्टिव में तो 4 ही ऑप्शंस रहेंगे, अब ऐसा तो नहीं है कि अब सभी का आंसर राइट है, बहुत आंसर राइट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग हियर दैट दिस इक्वेशन विल हैव द इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मींस बहुत सारे एक्स की वैल्यू ऐसी होगी जो दिस इक्वेशन विल बी सैटिस्फाइड। नाउ व्हाट विल डू हियर, क्या प्रोसेस करेंगे, अब मुझे यहाँ प्रोसेस, यू हैव टू फाइंड द प्रोसेस। मैंने वेवी कर्व क्यों इन्वेंट किया, हमने वेवी वर्क पे क्यों काम किया, क्योंकि मुझे सॉल्यूशंस 1 2 नहीं मिल रहे थे, वी आर गेटिंग द मेनी सॉल्यूशन, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई वेवी कर्व हैव कम इनटू पिक्चर, इजंट इट, वेवी कर्व हैव कम इनटू पिक्चर, बिकॉज़ इसका सॉल्यूशन निकालना, इस तरह के इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने वेवी का, अदरवाइज मैं तो पुट करके भी कर सकता था, बस पुट करने से आप एक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, बट इनफिनिट सॉल्यूशंस नहीं कर सकते हो। That's why for this also we will try to find a method कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। Now इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हाउ टू इंटरप्रेट दिस एज ज्योमेट्रिकली, है ना, ज्योमेट्रिकली इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो कैसे करेंगे हमको पता है, इसका मीनिंग क्या है मुझे पता है, तो लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इन इक्वेशन, इसको इन इक्वेशन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है। मुझे क्या फाइंड करना है इससे आप लोग को समझ आ गया, मुझे x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ये mod of x लेस देन 2 हो जाए। ओके, लेट मी आस्क यू हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, फर्स्ट टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। आपको x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे mod x 2 से कम हो जाए, यही है क्वेश्चन, एज सिंपल एज दैट। आपने सॉल्यूशन फाइंड भी कर लिया, but the solution you have found is not enough, it's not enough, क्योंकि नंबर लाइन में मैंने बोला है you have to find all the values in the number line which is satisfying this equation. Now let's do what is how, कैसे करेंगे हम, तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि mod of x क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है, कहां से, ये एक डिस्टेंस होता है, कहां से, इट्स अ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, आराम से सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी, है ना, पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, एक बार कंसेप्ट समझ गए ना, बहुत इजी लगने लगे मैथ का, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन, है ना, किसमें, नंबर लाइन में, इन नंबर लाइन, ये डेफिनेशन आपका काम करेगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये डेफिनेशन को थोड़ा याद करो ना, तब ये मैं डेफिनेशन को देखता हूं, विशेष एनीथिंग, यस यस you're right, solution is right, okay okay, now see कैसे करेंगे इसको, ठीक है, कैसे करेंगे, just see, now अभी क्या करेंगे, ये है ऐसा, है ना, अब ये क्या है, origin है ना, this is the origin है, everybody can hear me right, okay, ये origin है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि डिस्टेंस कितना बनाना है, 2 से कम, तो जो आपको नेकेड आई से दिख रहा है उसको पहले आप प्लेस कर लो, क्या दिख रहा है, 2, है ना, अब आपको डिस्टेंस क्या बनाना है, 2 से कम बनाना है, ठीक है, तो पहले आप देखो कि 2 कब हो रहा है, पहले आप ये देख लो 2 कब हो रहा है, पहले आप जब ये क्वेश्चन है ना तो पहले ये बना लो क्वेश्चन को ऐसे, ठीक है, तो ये पहले आप निकाल लो 2 कब हो रहा है, तो 2 कब हो रहा है, तो x जब 2 था और x जब -2 था, मतलब नंबर लाइन में आई कैन से दैट व्हेन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 2 और पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज -2, then the distance is basically the mod of x equal to 2. So for these two positions, isn't it? For these two positions, the mod of x equal to 2. Now tell me how many of you understood? For these two positions, the mod of x equal to 2. यही होगा आपका जो मोशन होगा, खाली टू एंड फ्रो मोशन है इनका, ठीक है, आप यही मूव करते हैं, तो आपको कितना डिस्टेंस करना है, यहां से
आपको यहां से खड़ा होकर ऑब्जर्व करना है चीज को। तो ये डिस्टेंस 2, यहाँ खड़ा होकर आप ऑब्जर्व करें को डिस्टेंस मुझे 2 कम मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस 2 कम मिल रहा है, ठीक है। तो इस दोनों पोजीशंस के लिए मिल रहा है आपको, ठीक है। एम आई राइट एवरीवन, प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत इजी लगने लगेगा, एम आई राइट, ठीक है। नाउ नाउ आपको डिस्टेंस क्या चाहिए, कहां से डिस्टेंस, ये रेफरेंस पॉइंट है, दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट है ना, दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट, दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। लेकिन आपको डिस्टेंस 2 नहीं चाहिए, 2 से कम चाहिए। तो आप बताओ अगर 2 से कम चाहिए तो आप इसके आगे जाओगे या इसके पीछे जाओगे, बताओ बताओ, टेल मी, लाइक यू विल गो बियॉन्ड 2 और यू विल गो लेफ्ट हैंड साइड और यू विल गो राइट हैंड साइड, जस्ट टेल मी एवरीवन, टेल मी एवरीवन, लेट मी सी हाउ मेनी कैन आंसर। लेफ्ट में जाएंगे राइट में जाएंगे, बताओ। लेफ्ट में अगर मुझे डिस्टेंस 2 से कम चाहिए तो लेफ्ट में जाएंगे, पहले हम इसकी बात करें फिर मैं इसकी बात करूंगा, इसके लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे, फर्स्ट ऑब्जर्व 2 एवरीवन, बताओ लेफ्ट में जाएंगे राइट में जाएंगे। सभी लोग बोल रहे हैं लेफ्ट, कोई ऐसा बोल रहा है कि सर राइट में जाएंगे, हाँ राइट में जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, आपको डिस्टेंस क्या चाहिए, 2 से कम चाहिए, तो डेफिनेटली आप क्या जाओगे, राइट में जाओगे। तो देखो आप जब राइट में जा रहे हो, यहां से मेजर कर रहे हो है ना, तो देखो कहां से जाओगे, यहां से जाओगे, अच्छा 2 तो नहीं चाहिए यहाँ पर, तो 2 पे तो आप क्या करोगे, फॉलो करोगे, तो 2 पे आपने फॉलो कर दिया। अब आप क्या करो, मूव, यू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द इन द लेफ्ट हैंड साइड, है ना, आप मूव करते रहोगे, यहाँ से आप मूव करोगे, है ना, ऐसे करके आप मूव करोगे, यहाँ तक मूव करोगे। 0 टच हो सकता है, 0 से सोल्यूशन हो सकता है, यू कैन पुट 0, है ना, ये सब पॉइंट्स को आप चेक कर सकते हो, 0 पुट करो तो ठीक है, ये 2 से बड़ा है, ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो जाएगा। नाउ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब इस पार्ट का सोल्यूशन मुझे मिल गया कि 0 से 2 का सोल्यूशन है, देयर इज नो ब्रेक, देयर इज नो ब्रेक इन द कर्व, इजंट इट। नाउ अबाउट दिस, अब मुझे यहाँ पे डिस्टेंस क्या चाहिए 2 से, तो आप बताओ -2 से अगर मैं मेजर कर रहा हूँ तो मैं राइट पे जाऊंगा या लेफ्ट पे जाऊंगा, लेट मी सी हाउ मेनी कैन आंसर, लेट मी सी हाउ मेनी कैन आंसर, राइट, वेरी गुड, राइट पे जाएंगे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं राइट पे जाएंगे, इजंट इट, राइट पे जाएंगे, एम आई राइट, राइट पे जाएंगे सर, राइट पे जाएंगे, चलो राइट पे जाते हैं। अच्छा इसको हॉलो में रखोगे, अब हम लोग यहाँ से राइट पे जाते हैं, ठीक है, राइट पे जाओ, तो मेरा सोल्यूशन क्या बना, यहाँ से यहाँ बना है ना, शेड भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, तो ये सोल्यूशन बना ना पूरा, ये मेरा पूरा शेड जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया, इसको मैं रेड से कर दे रहा हूँ, है ना, तो विल अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू सी, है ना, बेसिकली ये ऐसे, ठीक है। अब बताओ माइनस, अब सॉल्यूशन क्या हुआ, अब देखो बेबी कर्व याद करो, अब जब बेबी कर्व में हम लोग सॉल्यूशन लिखते थे, तो मेरा सॉल्यूशन मिल गया नंबर लाइन पे, अब आपको लिखना तो आता ही है, कैसे लिखोगे आप सॉल्यूशन को, -2 पे क्या लिखोगे, -2 पे ओपन कॉमा, 2 पे क्या ब्रेक नहीं है तो ब्रेक नहीं लगाओगे यहाँ पर, तो 2, तो इसका सोल्यूशन हो गया मॉड ऑफ x लेस देन 2 का सोल्यूशन हो गया -2 से 2, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से 2। इसका लिखने का और एक तरीका है, इसको ऐसे भी लिखते थे, याद है आप लोगों को मैं बताया था, x, इसको लिखेंगे ये x की वैल्यू है, तो दिस इज x, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो x की वैल्यू है, देयर इज नो, देयर इज, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, x इज ग्रेटर देन -2, ये लिखने का तरीका है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। x जो यहाँ पर गैप नहीं है तो ऐसे करके हम लिखेंगे, ठीक है, तो ये दीज आर द 2 वेज ऑफ राइटिंग द सोल्यूशन, ये आंसर हो जाएगा। Now tell me how many of you understood this? Question तो बहुत easily बनेगा तब। Now tell me how many of you understood? Just raise your hand, everyone. Raise your hand. How many of you understood? Very good. 11. Only 11. Just see. Try to analyze. If any doubt is there, I'm giving you 1 minute. Just try to analyze. कि हमने जो किया सही किया कि नहीं, ठीक है? हमने जो किया क्या किया और सही किया कि नहीं? Everyone, I'm getting yes, yes. Very good. Any doubt till here? Just see. मैंने क्या लिखा, ये दोनों जो प्रोसेस है ना लिखने का, सोल्यूशन लिखने का, ये दोनों जो चीजें है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, दिस टू इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आप लोग सर इसमें लिख लिए, तो जब भी आपने देखा कि मॉड ऑफ x लेस देन 2 है, तो आपने इस तरह से सोल्यूशन को लिखा, और ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। अब ये मेरे लिए एक फॉर्मूला बन गया, ये मेरे लिए फॉर्मूला बन गया, सभी को समझ आया, एवरीवन, एवरीवन,
Any doubt is there till here? Any doubt? Any doubt? Any doubt? So in this case, we have to take as positive number. Yes, yes. So can we draw? Not required. Okay. Yes, it is sure. 0 is solid only, but you don't have to draw, isn't it? Yes, solid only. Yes. If you want to draw, you can draw. But it's solid only. Okay. Okay. Any doubt is there? Yes, you can do that. The fourth property. Okay. Okay. Now fourth property, right? Fourth property. So what you can do right here? अगर mod of x less than a है, ठीक है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? a पॉजिटिव है, याद रखना चीज को. मैं क्यों कर रहा हूँ समझो चीज को, मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो we can write like this, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे. ये लिखना पहला इंपॉर्टेंट है ना? और फिर तो और भी लिख सकते हैं, और अदर वे ऑफ राइटिंग, और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे x इक्वल टू लिखो या बिलोंग्स टू जैसा लिखो. This is the explanation. Everyone please note. Okay, everyone understood? No doubt is there till here? Everyone? Hope I am clear to everyone? Isn't it? Okay. अब देखो ऐसा ये सब सीख के आप पूरे DPP 5 बना लोगे. All the questions, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका. ठीक है? चलो. Just write it. Everybody has written? चलो एक और चीज करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट, है ना? नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग इक्वालिटी लगा देते हैं. क्या चेंज आएगा केवल? व्हाट इज द चेंज? व्हाट इज द चेंज यू विल ऑब्जर्व हियर? व्हाट इज द चेंज? एवरीवन, व्हाट इज द चेंज? प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट. व्हाट इज द चेंज? ब्रैकेट. यस, ब्रैकेट. व्हाट इज द चेंज? एवरीवन फास्ट. सॉलिड स्फीयर. यस, ब्रैकेट. इजंट इट? तो ब्रैकेट चेंज हो जाएगा. बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब मैं ऐसे करूंगा तो फिफ्थ प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ, है ना? एवरीवन हैज रिटन द फोर्थ प्रॉपर्टी. फिफ्थ प्रॉपर्टी विल बी, अगर मैंने यहाँ किया तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा, यहाँ पर भी ये हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट चेंज हो जाएंगे आपके. ठीक है? ब्रैकेट पर भी चेंज, इजंट इट? और यहाँ क्या आ जाएगा? सॉलिड. यहाँ पर भी सॉलिड. ठीक है? यहाँ पर भी यही हो जाएगा. ठीक है? चेंज है ना? यहाँ पर ऐसे हो जाएगा. ठीक है? यहाँ पर भी ये हो जाएगा. आई एम क्लियर टू एवरीवन. नाउ राइट इट. फिफ्थ प्रॉपर्टी करके यू हैव टू राइट इट, इजंट इट? कोई चेंज नहीं हो, खाली ये चेंज हो जाएगा क्योंकि -2. क्यों सर -2 सॉल्यूशन है? क्योंकि मैंने बताया था इफ यू पुट -2 हियर तो दिस विल बी द इनइक्वालिटी, है ना? लाइक दिस. दिस विल बी 2 लेस देन इक्वल टू 2. क्यों सॉल्यूशन है 2 इसका? इसलिए सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें दो चीजें आ रही हैं. 2 के बराबर है या 2 लेस देन 2 है. तो 2 और 2 एक भी सही होगा तो सही है. तो ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग? टेल मी. How many of you can remember? 2 less than equal to 2 is right or wrong? Let me see how many of you can answer. 2 less than equal to 2, right or wrong? Just reply me fast. Yes, right. Okay, I have told you. You see now how means whatever things we have learned in the previous classes also, these are all important, isn't it? So this is right. That's why 2 and -2 is the solution of this inequation, isn't it? Now everyone write it, please. Any doubt? Okay. ठीक है? Am I clear to everyone? Yes, A is positive. A is positive, equal to 0. This is also equal to 0. But if it is 0, the solution will only be 0, isn't it? If it is 0, for A equal to 0, what will do? A equal to 0, just put like this. Okay. So it will be something like this. Okay, I'll discuss this. Okay. So for end point like 0, so you try to deal with it separately, isn't it? So it will be other question itself. Okay. Okay, everybody understood? Everyone? No doubt is there? Okay. Now see. Please write everyone.
Okay, any doubt? No. So for this, okay, ठीक है. Now see. Okay, now sixth property, isn't it? Sixth property. What is sixth property? What is the sixth property? Now see. Now if we are making this as, suppose we are making this as greater than. Okay, so what is the effect? Okay. Let's suppose we are making like. So now find this solution. Okay. Again the number line, isn't it? We'll take the number line. So this is 0, this is 2. So first of all, we'll see where it is 2. So where it is 2? This x equal to plus minus 2. Okay. Now you have to make the distance what? Greater than 2. Okay. So this is again the reference point. This is again the reference point. So from where you will move which side? Isn't it? You will move 2 का right or 2 का left? Let me see how many we can answer. आपको distance 2 से बड़ा चाहिए. तो right में move करोगे या left में move करोगे? Right में move करोगे left में? Tell me everyone. Right पे. ठीक है. Right पे move करेंगे. कहाँ से move करना पड़ेगा? यहाँ से. और equal to नहीं है तो ये होगा follow. इसके क्या move करेंगे? Again left पे. ये हो जाएगा solution. ठीक है. तो हाउ द सॉल्यूशन विल बी रिटन है? तो सॉल्यूशन इसका लिखा जाएगा कैसे? ऐसे लिखेंगे हम इसका सॉल्यूशन. जैसे x इज, ये छोटा है ना, दो तरह से. एक तो आप लोग जानते हो कैसे लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2. दिस विल बी लाइक दिस एंड ये एक सॉल्यूशन होगा. और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को. देखो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? x लेस देन माइनस 2 तो लिखते हैं ऐसे, और है ना, और ऐसे लिखते हैं x greater than 2. Please understand these two things. These are very, very important. Okay, these are very important. You have to write both the forms. This is actually the value of x. Minus infinity से minus 2 और है ना, this is union. This is union. Okay, this is union. Okay, so this is 2 से you have to write the answer like this. Minus infinity to minus 2. There's a gap, so union 2 से infinity. और you can write minus 2 से छोटा होना चाहिए, है ना, और 2 से बड़ा होना चाहिए. और the word is or here. Okay, the word is or. Please note the word is or. Okay, hope I am clear to everyone. Hope I am clear to everyone. So here the solution is again, what we'll write from here, the solution will be x is, a is positive, so x is greater than a or x is less than minus a. Or you can write minus infinity से minus a union a से like this. Just see how many of you understood? Everyone? This yes. No, you can't. हाँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर ऐसे लिख सकते क्या? लास्ट वाला सॉल्यूशन जो है ना सर, बोल रहे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, है ना सर, ये जो सॉल्यूशन था मैंने ऐसे लिखा था, ये -2 और ये 2. बहुत सारे बच्चे सर ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे पहले बड़ा लिख दिए और फिर छोटा लिख दिए और ऐसे कर दिए, है ना? नहीं कर सकते हो. आपको सबसे पहले छोटा लिखना, छोटा से स्टार्ट करना है. व्हाट इज द फॉर्मेट? छोटा से स्टार्ट कर. जब भी आप ब्रैकेट यूज करते हैं, मैंने आपको बताया दिस फॉर्मेट जो बताया ना, ये फॉर्मेट जो मैंने बताया है, ये चाहे ये फॉर्मेट, सबसे पहले आपको लोअर नंबर लिखना है, मतलब लीस्ट नंबर, है ना, लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट. समझे? यहाँ पर भी लोअर लिमिट, पहले छोटे नंबर, लोअर लिमिट मतलब छोटे नंबर, है ना, स्मॉलर वन, स्मॉलेस्ट यू कैन से स्मॉलेस्ट, और यहाँ पर लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, छोटे और बड़े. इसका मतलब ये, अगर आप कोई भी चीज ऐसे लिख दिए ना, ऐसे करके, इसका मतलब बी बड़ा है और ए छोटा है, इसका इतना मीनिंग है. तो याद रखना, जब भी हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं तो आपको एक चीज याद रखना है कि पहले छोटा फिर बड़ा, छोटा कॉमा बड़ा, ऐसा लिखते हैं. अगर कभी मैंने ऐसे यूज कर दिया तो इसका अपना मीनिंग है कि बी ए से बड़ा है, तो हमेशा स्मॉलेस्ट देन लार्जेस्ट. देखो मैंने यहाँ पर यही किया था, स्मॉलेस्ट कॉमा, फॉर्मेट इज स्मॉलेस्ट
comma largest. This is the format. Anshika, you understood? Understood? No, you can't. 2 से बड़ा -2 से छोटा है. Is it right? This is wrong. This is wrong. 2 से बड़ा -2 से छोटा नहीं हो सकता ना. 2 से -2 से बड़ा, इसको पढ़ते कैसे हैं? How will read it? इसको पढ़ते कैसे हैं? अगर मैंने ऐसे बोला, just write it, है ना? इसको पढ़ते कैसे? जैसे बताओ, इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको हमने पढ़ते हैं कि x is less than -2 or x is greater than 2. This is the way of reading it. x is less than -2 or x is greater than 2. ठीक है? इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको कैसे पढ़ते हैं? अगर मैंने इसको ऐसे बोला, इसको हम लोग, मैंने बताया था कैसे पढ़ते हैं. मैंने बताया था एक क्लास में, मैंने बोला था कि क्या पढ़ते हैं इसको. x is greater than, please understand, each and everything is important, greater than 2, and we use the word and here, and greater than -2, and x is lesser than 2. So here we are using the word and, isn't it? Please. क्योंकि आप ऐसे देखो ना कि मैं मान लो एक नंबर ले लिया, इसका एक सॉल्यूशन ले लिया. लेट्स सपोज वी हैव टेकन अ सॉल्यूशन, लेट्स सपोज एनी सॉल्यूशन हैव टेकन, लेट्स सपोज 1. ओके, तो 1 को आप क्या बोलोगे? आप इंग्लिश का चीज है, आप जानते होगे, यू नो बेटर देन मी, इजंट इट. 1 मैंने लिखा है ना. अगर आप बोले 1, तो मैं 1 को क्या बोलूंगा? 1 जो है ना, वो -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ऐसे बोलोगे. समझो चीज को, लॉजिकली समझो. मैंने इसके बीच में एक सॉल्यूशन ले लिया, मैंने ले लिया 1, जस्ट आई हैव टेकन 1. तो आप अगर 1 लियो तो 1 को कैसे पढ़ोगे? 1 को मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? तो 1 जो है ना, वो -2 से बड़ा है एंड 2 से छोटा है. दोनों सॉल्यूशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. यहां पर जब भी होगा ना, इसके बीच में एंड है. और मैंने मान लो इसका एक सॉल्यूशन लिया, मान लो यहां पर एक सॉल्यूशन लिया 3, तो आप ऐसा बोलोगे क्या? 3 जो है वो -2 से छोटा है एंड 2 से बड़ा है, ऐसा बोलोगे क्या? तो गलत हो गया. दिस इज ए इंग्लिश स्टेटमेंट, इजंट इट? अगर मैंने यहां पर एक सॉल्यूशन ले लिया 3, तो आप क्या बोलोगे? 3 जो है -2 से छोटा है, ऐसा, एंड 2 से बड़ा है, ऐसे बोलोगे क्या? तो गलत हो गया. मैं ऐसे बोलूंगा 3 जो है वो -2 से छोटा है और 2 से बड़ा है. तो इसमें इवन इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, वी विल से दिस इज ट्रू. ऑब्वियसली x = 3 का सोल्यूशन है. बोलो, समझ आ रहा है अंशिका? क्या मैं बोल रहा हूं? और एंड का फर्क समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? नो, दिस इज नॉट द थिंग. इसको एंड है बीच में ना, इसका मतलब होता है एंड. इसका जब भी आप ऐसे लिखते हैं, उसका मतलब एंड होता है. ठीक है, यू कांट राइट इट. ठीक है, अंडरस्टूड? yes, you can write it like this. Dhruv, you can write it. Okay. आप धीरे धीरे सब समझ जाओगे. सर, कैन यू गिव 2 more examples? Yes, I'll give. Okay. अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे ना इसमें, कोई इश्यूज नहीं है. चलो एक तो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग. ठीक है, समझ जाओगे आप, इसको जस्ट देखो, है ना, आप समझ जाओगे. होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर. ठीक है, मैंने 2 चीजें आपको बताई कि mod of x लेस देन 2, इसका मतलब आप इसको लॉजिकली याद कर लो, अपने मन में बैठा लो. कैसे? mod of x is less than 2, it means x is always greater than -2 and x is less than 2. ऐसे जो मैंने पहले एग्जांपल में किया था. और मैंने अगर ऐसे बोला mod of x is greater than 2, it means how we'll read it? x is greater than 2 or x is less than -2. You have to tell 5 times. Just tell 5 times this. Then you'll remember. This will fit in your mind. Just tell 5 times, everyone. We'll do Kushagra rest of the things also. Don't worry, है ना? Or means union, yes, and means intersection, yeah. And or means either of, है ना? Either of, चाहे ये हो सकता है या ये हो सकता है. एंड मतलब क्या होगा? दोनों होगा, है ना? मतलब -2 से बड़ा भी होगा और 2 से छोटा भी होगा. ऐसे सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ. ठीक है, everyone understood till here? How many of you understood? Just raise your hand fast, everyone. Okay, just tell yourself 5 times, mod of x is less than 2, it means x is greater than -2, less than 2.
You have to remember also. Okay, conceptually you have understood. Now try to remember all this. Okay, learn by heart. Okay, directly. Okay, whenever this kind of situation will occur, you will say like this, isn't it? Am I clear to everyone? So let's take some question actually, isn't it? Am I clear? Okay. Any doubt is there till here? Any doubt? Okay. Now let's take some question from BPP 5, isn't it? Let's take some question. Okay. Yes, yes. We'll discuss sheet 9. We will discuss DPP 9 in the afternoon, isn't it? In the evening. Yes, everybody see, Hannah? If any doubt is there, you can tell me. Any doubt is there till here? Okay, let's solve some question. Okay, then you will understand better. Okay, I'm sending DPP 5. I'm just sending in the group. Okay. I've sent. Okay. Till here, any doubt is there? Till here, any doubt is there? No? Okay. Now, what you have to do actually, ठीक है? अभी हमने इनइक्वालिटीज को आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा. मैंने जो आपको फिफ्थ फोर्थ प्रॉपर्टी जो बताया ना आपको, और थर्ड जो फोर्थ है ना, ये तो वो सब जो प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी से जितनी रिलेटेड प्रॉपर्टीज है ना, आप एक बार पढ़ो दोबारा, है ना. यू जस्ट रीड इट once again, you know, and try to analyze like what I'm doing, and try to learn the formula, this kind of formula by heart. Okay, ऐसा हो रहा है. And try to speak, है ना, try to speak, है ना. जब आप याद करते हो थोड़ा बोलने की कोशिश करो, तब आप उसको याद हो जाएगा आपको. आप समझ गए हैं, इसको थोड़ा फिट करना, बिकॉज दिस इज न्यू थिंग फॉर यू, isn't it? इसको मुझे डायरेक्टली यूज करना है. कभी भी ऐसा सिचुएशन आया, वी कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला, isn't it? We can directly use this result directly. ठीक है? So let's solve. Understand everybody? Raise your hand. Just raise your hand. Everybody understood what I'm saying? है ना? Because the new thing is for modulus function is yes. Many ways we can understand. Okay, Chakra. Many ways we can understand. I can make you understand other ways also. No issue. Okay. So you understood what I'm saying? Just please go through. है ना? चलो. ठीक है? Let's see. देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एवरीबॉडी सी क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट हम लोग कर लिए थे 3 क्वेश्चन, है ना. 3 क्वेश्चन से हटते हैं. जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 2. नाउ इट इज रिटन दैट mod of x is less than. Okay. So if you want to do graphically, we know, है ना, or we know the result also, we directly use the result that mod of x is less than a is positive, then x is between -a to a. So we can directly write the solution as x is -6 से 6 answer. Or other way of writing the answer is -6. Or other way also if you want to write, अगर इस अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है, यहाँ 0 कर दिए, है ना, 6 हो गया, यहाँ -6. अब आपको डिस्टेंस को क्या करना है, 6 से कम, है ना, 6 से कम करना है. कहाँ मूव करोगे आप, ये तो हॉलो हो जाएगा. This will be hollow and this will be like this. So again this will be -6. Both the ways, है ना. How many of you understood this? Everyone? Okay. Now let's take 2 ka, this is 1. Now let's take second question. Okay. Now let's say mod of x less than 0. Tell me when the mod x is less than 0. So for this kind of question ना, so बच्चे क्या डायरेक्टली फॉर्मूला, फर्स्ट ट्राई टू एनालाइज लाइक कौन से x के वैल्यू के लिए 0 हमेशा x के लिए बड़ा होगा, कौन से x के वैल्यू बताओ. अब ट्राई टू पुट द वैल्यू. मैंने जो शुरू में जो किया था काम, I've done in the beginning.
कौन से x की एक कैसी वैल्यू होगी, आप पहले आप सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले आप अपने कॉमन सेंस यूज करो कि x के कौन से वैल्यू के लिए 0 इससे बड़ा होगा, बताओ कौन से x के लिए वैल्यू। आप एक ही ऐसे सोचो चीज को कि मॉड ऑफ x तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है इंक्लूडिंग 0, तो पॉजिटिव अगर हो गया तो x की कौन सी वैल्यू होगी। लेट मी आंसर, एवरीवन प्लीज आंसर, हाउ मेनी कैन आंसर दिस। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई भी पुट करो, जिनको कंफ्यूजन आ रहा है कोई पुट करो वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट करो। माइनस इंफिनिटी, नो नो राइट, ओके बाय मिस्टेक ही हैज डन, ओके सो या इनफाइनाइट, 0 को बड़ा होना है, 0 को बड़ा, अगर इनफाइनाइट आप बोल रहे हो तो आप पुट करके देखो, आप पुट करो एक कोई वैल्यू, मान लो इनफाइनाइट बोल रहे हो, लेट सपोज आपने पुट किया -2, तो -2 आप पुट किया तो -2 हो गया यहाँ पर, और यहाँ क्या हो गया, दिस इज 2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2। अब बताओ 0 2 से बड़ा कब होता है, 0 2 से बड़ा कभी होता है क्या, 0 2 से कभी बड़ा होगा, जस्ट टेल मी, 0 2 से बड़ा होगा, नहीं होगा। अब मान लो आपको एक चीज और है, 0 पुट करके देख लो आप, जस्ट पुट 0 हियर, तो मॉड ऑफ 0 इज 0, नाउ 0 इज लेस देन 0, कभी होता है क्या, 0 0 से कम ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो क्या सोल्यूशन होगा इसमें, बोलो एवरीवन, फॉल्स, मतलब फॉल्स मतलब क्या हो गया, फॉल्स नहीं बोलेंगे इसमें, क्या बोलेंगे डायरेक्टली नो सॉल्यूशन। कितना इजी है देखो, नो सॉल्यूशन, इजंट इट। am I clear to everyone, am I clear, okay sir, what is x equal to 0 then, acha अब now third question, if somebody is asking, please write it, this please write it, everyone please write it. Yes, yes, no solution. No, we can't generalize, okay, we can't for if this is the situation, there is always no solution, okay, if it is, this is the situation, okay. Now what will happen if somebody is asking, sir what will happen here, no solution, okay. Now the next question is, I'm just twisting the question, isn't it, I'm just twisting the question, I'm making it equal to 0. Somebody is asking, so what will happen, so what is the solution here, tell me everyone, what is the solution here. If you are making mod of x, you just put the number and check, mod of x less than equal to 0, what is the solution here, 0, yes 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 yes, 0, yes yes everyone, 0, isn't it. So you just put that x equal to -2, if you put, so this will be -2, this is 2 and 0 greater than equal to, so it will not be a solution because 0 2 से तो बड़ा हो नहीं सकता। लेकिन एक जगह आप इक्वल टू तो देख सकते हो, ये कभी 0 इससे कभी बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो चीज नंबर होती है ना, वो 0 या 0 से बड़ा है ये नंबर। तो x इक्वल टू 0 में अगर पुट करूं इसमें, इफ आई पुट x इक्वल टू 0, then this is mod of 0, that is equal to 0, so 0 is less than equal to 0, this is right actually, okay, this is why right, because I have told you like 5 less than equal to 5 is right, because यहाँ दो चीजें आ रही है, एक 0 0 के बराबर हो जाए तब भी राइट हो जाएगा, और 0 अगर 0 से छोटा है तब भी वो राइट हो जाएगा, लेकिन ये तो राइट है, तो 0 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, तो कैसे लिखोगे आप, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, डिस्क्रीट करके। Am I clear to everyone? Any doubt is there? Any doubt? Okay, Vishesh, I'm clear, everyone, Nishka, Adya, everyone, Kavya, everyone, Aman, Javed, everyone, Sia, everyone, Aditi, everyone, I'm clear to everyone. यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है सब, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं ना, एक लास्ट क्वेश्चन, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा चलो एक और पूछते हैं। अगर मैं बोला ऐसे, बस कॉमन सेंस यूज करना है आपको, है ना। देखो अब मैं ऐसे बोला -10 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ x, मान लो ऐसे बोला, क्या सोल्यूशन होगा, इसको पुट करके देख सकते हो। -10 को मॉड x से बड़ा है, तो आप ऐसे सोचो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, नॉन नेगेटिव इसको बोलते हैं, पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, तो ये तो 0 से बड़ा है, और -10 क्या होगा, -10 एक नेगेटिव नंबर है,
तो कोई एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? बोलो, कभी हो सकता है? तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या होगा? x इक्वल टू 5 हो सकते हैं या नो सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट, है ना। अगर मैंने बोला मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन -10, क्या होगा सर सॉल्यूशन? जस्ट लास्ट वन, लेट मी सी। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन -10 क्या होगा? मॉड ऑफ x -10 से बड़ा होना चाहिए, क्या होगा सॉल्यूशन इसका? मतलब एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से बड़ा है, कब होगा ये बताओ? यस एवरीवन प्लीज टेल। एक नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, नो माइनस, नो नॉट -10 से 10, जस्ट एनालाइज। मॉड ऑफ एक्स नेगेटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर? एक पॉजिटिव नंबर, एक ये सब जो चीजें है ना, आपको मैंने इसलिए मैंने पहले जो काम करवाया ना आपको, आई हैव नॉट मेड यू राइट द फॉर्मूलाज, आई हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द क्वेश्चन। तो इसको लॉजिकली आप कर सकते हो। ये मैंने आपको फॉर्मूला जो दिया था, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 10 का फॉर्मूला दिया था, या मैंने बोला था मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, वेयर ए इज पॉजिटिव, यहाँ ए नेगेटिव है। समझो आप बात को, ये सब चीजें आपको समझनी भी पड़ेगी कि एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से कब बड़ा होता है। एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से कब बड़ा होता है? कोई भी वैल्यू पुट करना, पुट कर लो ना, x इक्वल टू 1 पुट करो, तो 1 मॉड ऑफ 1 इज 1, तो 1 इज ग्रेटर देन, आस्क योरसेल्फ इट इज राइट? यस इट इज राइट। अगर आपने -100 पुट किया, लेट्स सपोज यू पुट -100, तो -100 इज बेसिकली 100। अब आप अपने से पूछो कि 100 क्या -10 से बड़ा है? इट इज ग्रेटर देन -10, तो यस इट इज राइट। तो यू पुट व्हाट, नाउ एक 0 पुट करके देख लो, 0 इज ग्रेटर देन -10, यस इट इज राइट। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन हियर? x इज क्या हो जाएगा यहाँ पर? -इंफिनिटी से इंफिनिटी। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? x इक्वल टू रियल में लिखते हैं। रियल का दूसरा नाम है, जैसे x इक्वल टू r लिखोगे ना, इसका मतलब क्या होता है? रियल है ना, ऑल रियल नंबर, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड? बोलो सिया प्लीज अंडरस्टैंड, आपको समझ आया सिया? -10 से इंफिनिटी नहीं होगा, आप पुट करो, -10 से पहले पुट करो, समझना पड़ेगा, आपके लिए नया है, देखो आपके लिए नया है चीज। नो 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 नो, करेंगे विशेष, गो स्लो, ओके, आई विल डू एवरीथिंग, ओके, डोंट वरी अबाउट दिस, व्हाट जो मैं करवा रहा हूँ उसको करो, है ना, सब हो जाएगा, यू डोंट हैव टू रन, है ना, गो स्लो, है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके, ठीक है, नो इश्यूज, गो स्लो एंड ओके। ठीक है, कितने लोगों को समझ आया ये चीज? या प्लीज चेक, है ना सर, कैन लास्ट, ओके लास्ट एग्जांपल, ओके दीज टू, ओके पहला जो एग्जांपल था ना, मैंने ये किया है ना, जस्ट थोड़ा सा एनालाइज करना है। मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -10, है ना, हो जाएगा, डोंट टेक टेंशन, है ना, आराम से हो जाएगा, इट विल बी डन वेरी। आप बहुत कुछ सीख रहे हो, एक कम समय में बहुत कुछ सीख रहे हो आप, इट्स हैट्स ऑफ टू यू, इजंट इट, है ना, यू हैव टू बी पेशेंट, इजंट इट। देखो बहुत कुछ सीख रहे हो, ये सब कुछ चीजें है ना। देखो मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -10, ओके, ये एक पॉजिटिव नंबर है एंड दिस इज अ नेगेटिव नंबर। तो अब आप खुद सोचो, नंबर्स आप जानते हो, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर से कभी बड़ा हो सकता है क्या? जस्ट आस्क योरसेल्फ, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, मैंने बोला था ये डिस्टेंस है, एंड दिस इज अ नेगेटिव नंबर, आस्क योरसेल्फ दैट अ नेगेटिव नंबर कैन बी अ ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर, कैन इट हैपन एनी टाइम? कभी ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता मतलब x का कोई ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो देन x इज इक्वल टू व्हाट? 5। नाउ लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। मैंने बोला कि पॉजिटिव नंबर -10 से बड़ा है, कब होगा? एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से तो हमेशा बड़ा होगा, कोई भी ले लो आप x, अब x यू कैन टेक एनी वैल्यूज ऑफ x यू वांट, ओके, इट इज ऑलवेज ट्रू। तो यहां पर सॉल्यूशन आ गया ऑल रियल वैल्यू, isn't it? यहां सॉल्यूशन आ गया ऑल रियल वैल्यू। क्लियर कर देता हूँ चीज को, ठीक है,
यहां पर आ गया ऑल रियल वैल्यूज, यहां पे आ गया 5 ऑल रियल वैल्यूज 5। अंडरस्टैंड दिस। अब आपको करना क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको। ओके, अभी सबसे पहले आप क्या करोगे, यू रिलैक्स, है ना। फिर जब आपका पूरे क्लासेस ओवर हो जाएंगे, just after taking lunch and everything, okay, you try, you again go through what I have discussed, isn't it? आराम से देखो, डिस्कस देखो, चीज को एनालाइज करने का, एनालाइज, ट्राई टू एनालाइज दिस, ट्राई टू सिट बैक एंड डिवोट सम टाइम, isn't it? और फिर देखो डाउट्स क्या कह रहे हैं, जो भी डाउट्स आ रहे हैं ट्राई टू नोट। ओके, शाम को और कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप करो, जस्ट क्लिक द फोटो एंड व्हाट्सएप मी इंडिविजुअली, नो लाइक यू डोंट हैव टू पुट इन ग्रुप एंड ऑल, if it is there, it's okay, आप इंडिविजुअली पुट कर सकते हो या ग्रुप है, नो इश्यूज। सर ये डाउट है, इवन इफ यू जस्ट मीटिंग टुमारो आल्सो, यू कैन आस्क मी टुमारो आल्सो, नो इश्यूज। ओके, सो दिस इज अ प्रोसेस, जस्ट कंप्लीट योर होल क्लास, जस्ट सिट बैक इन इवनिंग आफ्टर, है ना, टेकिंग रेस्ट एंड ऑल, ट्राई टू एनालाइज लाइक व्हाट वी हैव डन, इजंट इट? बहुत सारे डाउट्स आएंगे, डाउट्स आना अच्छा है, मीन्स यू आर टेकिंग इंटरेस्ट, इजंट इट? मीन्स आप 80% समझ रहे हो, 20% नहीं समझ रहे हो, है ना, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो 20% वाली जो चीजें वो भी मुझे क्लियर करनी है, बिकॉज डाउट्स तो आएंगे, पढ़ोगे तो डाउट्स आएंगे, है ना। तो वी हैव टू क्लियर इट, इजंट इट? वी हैव टू क्लियर इट। अभी बहुत सारी नई चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मॉड इट इटसेल्फ ए वेरी वास्ट टॉपिक, इजंट इट? लॉट्स ऑफ थिंग्स देयर टू अंडरस्टैंड, जस्ट स्टार्टिंग, तो आपको इसको क्लियर करना है ना, ठीक है। तो ओके, अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है, नो डाउट इज देयर। Can we? Yes. Math group you can ask out, ना, no issues. Group तो इसलिए है ना. No. I'll make you understand issues. Okay. ठीक है. So I have it down. Okay. So you can send me the WhatsApp, okay, and we'll meet in the evening also. Okay. Whatever doubt is there related to this, I can unmute some of the students in doubt class. Okay. You can raise your doubts, no issues. Okay. Okay. Wishes. Yes. We are meeting at 4:45, so you can come with a doubt of mod also, no issue. Okay, whatever conceptual doubt you have, you can also raise your doubt. Okay, just note your doubt point, and just ask that this is a doubt and clear it and tick it, isn't it? This doubt is getting clear. Okay, so this should be the process, isn't it? So okay, doubt at afternoon lecture. Okay, yes. So we will discuss DPP 9 also. This is DPP 9 also. Okay. We will discuss DPP 9 also, isn't it? And all the conceptual doubt you are having, we can unmute you also, you can raise doubt, okay? If you are just finding difficult in writing and all, so we can unmute you, can raise the doubt also, no issue, isn't it? Hope I'm clear to everyone, okay? Yes, I'll do that. Tripti, isn't it? I'll do that, isn't it? Okay, okay? So enjoy your other classes. Till then, bye. We'll meet you in the afternoon. Tata, bye. Anna, tata, everyone. Bye.